Ladies and gentlemen, I would now like to invite Professor Dr. Tahir Saghir, moderator and a leading figure in cardiovascular medicine. Professor Dr. Tahir Saghir is the Executive Director of the National Institute of Cardiovascular Diseases, NICVD, Karachi, and a renowned interventional cardiologist with fellowships from the College of Physicians and Surgeons, Pakistan, FCPS, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and the American College of Cardiology, FACC. We welcome Mr. Tahir Saghir to the Healthcare Expo Day 2. Thank you for coming here, sir. Tahir sir, we are honored. You have always been very kind with us. Other panelists of this session are Professor Irfan Amjad Lutfi sir. He is heading the stroke program at NICVD and is an intervention radiologist. Dr. Abdus Salam Khan. Dr. Abdus Salam Khan is associated with Shifa International Hospital, Islamabad, and his specialty is emergency medicine, and he remained the Dean of Emergency Medicine at CPSP. Dr. Faryal Tariq. Dr. Faryal Tariq is associated with DUHS. She is based at OJA campus. She is an endocrinologist and diabetologist. Dr. Waqas Khalid, he is associated with PNS Shifa and he is HOD cardiology. Dr. Okasha Anjum, she is associated with Indus University and her specialty is physical therapy. So please. So the session is non-communicable diseases. It's a growing burden on healthcare. And let me hand over to Professor Tahir Saghir. Sir, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Thank you very much. Thank you for the kind consideration to moderate the session. Today's session is regarding the non-communicable diseases. It's a huge burden of non-communicable diseases in Pakistan. Way back 15, 20, maybe 30 years back, we were very much concerned about the communicable diseases. But now it's a double burden, the communicable and non-communicable disease. So today's session will be with me, Dr. Abdus Salam from Shifa International, Faryal Tariq from DUHS OJA, Irfan Lutfi Saab from NICVD, Okasha Anjum from Indus University, and Asif Sheikh from DUHS. So to start with the program, I would like to invite Dr. Abdus Salam, Shifa International, regarding the rise of vascular disease in Pakistan. Presentation. Assalamu alaikum everyone. I'm thrilled to be here and I thank Badr Expo for arranging such a platform to be part of such a gathering जिसमें के हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और उसके साथ साथ जो हेल्थ केयर की सपोर्टिंग जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ एक प्लेटफॉर्म पे बात करें और सॉल्यूशंस क्रिएट करें सो दैट वी कैन बेनिफिट आवर एंड यूजर आवर पेशेंट जिसके पीछे हम सारे ये काम सारे कर रहे होते हैं. सो इफ़ यू कैन स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन. Although it only has 6 slides, so if they cannot produce it in just maybe a couple of minutes, I can
relate to you some messages. कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में जो हम ज़्यादातर कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारे ख्याल में उन तक उनका इलाज एंटीबायोटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और ये वो सारी चीज़ें आसान हैं, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनकी अर्ली डिटेक्शन हमारे लिए वी थिंक इट्स अ बिग इशू, क्योंकि वो प्रिवेंटिव मेडिसिन में आ जाती हैं, एंड देन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट्स अ बर्डन. You're trying to maybe go after certain things which are not apparent yet. तो इसलिए वो एक issue बन जाता है. तो when we talk about vascular diseases, actually we are talking about diseases of the arteries, diseases of the veins and diseases of the capillaries. और ये हमने ये देखा है कि ये जो है पाकिस्तान में these are alarmingly increasing in number, and we will talk about that thing in just a minute. तो ये कौन कौन सी डिजीज़ ऐसी हैं जो कि इस कैटेगरी में आती हैं, एंड आई थिंक व्हेन वी लुक एट इट देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्पेशलिस्ट हु डील विद दीज इश्यूज, एंड आई विल जस्ट नेम इट फॉर जस्ट अ फ्यू. कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को सारे कार्डियोवैस्कुलर देख रहे होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट देख रहे होते हैं, और साथ साथ व्हेन इट कम्स टू द सर्जिकल स्टैंड पॉइंट कार्डियोथोरेसिक सर्जन जो है वो उसको देख रहे होते हैं. इसी तरह हाइपरटेंशन. Hypertension is a sort of vascular disease. When the pressure of the vessels starts getting up more than usual, it causes problems. Peripheral vascular disease, peripheral arterial disease, peripheral venous disease. ये एक पूरा अलग सब्जेक्ट है. Cardiovascular disease again, cerebrovascular disease जिसमें stroke आ जाते हैं, जिसमें के hemorrhagic strokes, ischemic strokes, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं. Diabetic vascular pathology, रीनल वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस एंड मीजेंट्रिक वैस्कुलर थिंग्स. अच्छा, इसमें जो बेसिक जो इशू जो हम जिसको कह सकते हैं कि एपिडेमियोलॉजी की या हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ अकाउंट्स फॉर अबाउट 29% ऑफ ऑल डेथ्स इन पाकिस्तान. ये WHO की 2022 की स्टडी, उसमें ये उन्होंने बताया कि 29% ऑफ ऑल डेथ्स आर कार्डियोवैस्कुलर. Hypertension is affecting 1 in 3 people. This is a big number, big number. Diabetic related vascular complications is about 26%. Again, a big number. उसके अलावा stroke incidence has increased by 40%. Presentation अब आ गई. Although कि मेरा ताल्लुक इमरजेंसी मेडिसिन से है तो आई कैन हैंडल एनी सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी, बट दिस इज़ समथिंग दैट्स नॉट माय रियल एक्सपर्टीज. तो हमने इसका आपको सबको इसका जिक्र किया आप सब लोगों के साथ, एंड देन लेट्स टॉक अबाउट एपिडेमियोलॉजी. ये हमने अभी स्ट्रोक इंसिडेंस बताया आपको. लास्ट डिकेड में इट हैज़ इंक्रीज 40%. दिस इज क्वाइट अ बिग नंबर, एंड आवर अदर एक्सटीम्ड एक्सपर्ट्स विल टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स. My job is just to see कि ये increasing in number है and where do actually they present. ये थोड़ा सा आपको बताती है कि ये इसकी बेसिक पैथोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो किस तरह की है. You know, when you look at the left side of the slide, it says कि over the course of years there is slowly narrowing of the vessels, और ये narrowing of the vessels throughout the body हो रहे होते हैं. तो जिस एरिया में ये नारोइंग होती है उस एरिया को अफेक्ट करती है. सो इफ़ इट्स हैपनिंग इन द ब्रेन साइड वो ब्रेन को अफेक्ट करेगी. इफ इट्स हैपनिंग इन द हार्ट इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग द हार्ट, एंड इट हैपन्स इन द मिजेंट्री या एब्डोमेन की करेगी. और अगर ये पेरिफेरल वेसल्स में होती है तो पेरिफेरल वेसल्स में पेन और वो सारी क्लॉडिकेशन कॉज करती है. जो राइट साइड वो है वो उसमें उन्होंने ये बताया कि देयर इज़ एन एम्बोलिक फिनोमेना ऑल्सो. थ्रोम्बस कहीं पर ब्लड क्लॉट कहीं से निकलता है और इट कैन लॉज एनी प्लेस, एंड वेर एवर इट लॉजेज इट कॉजेज अक्यूट सिम्टम्स. जो लेफ्ट साइड है दैट्स क्रॉनिक सिम्टम्स, क्लिनिक में ये मरीज़ देखते हैं. जो राइट साइड है वो मेरा इशू है कि जब वो पेशेंट्स आते हैं दे आर अक्यूटली सिक, दे आर गोइंग टू डाई इफ़ समबडी विल नॉट इंटरवीन. अगर वो हार्ट में प्रॉब्लम होगा तो फिर हम कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाते हैं. अगर वो प्रॉब्लम ब्रेन में होगा तो हम न्यूरोलॉजिस्ट, TPA, उन तमाम चीज़ों की बात होती है. एंड इफ़ इट्स इन द मेजेंट्री वी हैव टू कॉल द सर्जन टू टेक केयर ऑफ इट. और अगर वो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम हो
then you talk about different modalities. So right side is the emergency medicine territory जिसमें acutely patient आता है, and we stabilize them, give them to the specialist who take care of the problem definitive way, चाहे तो वो उसको कैथेटर बेस्ड किसी भी मोडालिटी से करें या ऑपरेटिव मोडालिटी से करें. वी विल टॉक अबाउट इट लेटर इन द टॉक टाइम. कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स इसमें ये याद रखें, वी ऑल नो इट, इट्स जस्ट अ रिपीटिशन सो दैट वी विल अंडरस्टैंड इट बेटर. मॉडिफाइबल रिस्क होते हैं, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क होते हैं. जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क हैं ये वो हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते. वो एज है, एज प्रोग्रेस ही करती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. फैमिली हिस्ट्री ऑफ वैस्कुलर डिजीजेज एंड जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, तो हम इसकी बात नहीं करते. हम आते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की. मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो हैं कि जिनको आप अर्ली अगर आइडेंटिफाई करें और उनके ऊपर वर्क करें तो यू कैन एक्चुअली लोअर द रिस्क ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस कॉज्ड बाय ऑल दीज इश्यूज. तो उसमें पुअर डाइट सबसे बड़ा, और हम सुबह से ये सुनते भी आ रहे हैं कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल और उसमें वो तमाम चीज़ें जो हैं आज हम उसी की रिपीटिशन करेंगे, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे दोज कॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ वी कैन मॉडिफाई देम तो हेल्दी लाइफस्टाइल को हम मेंटेन कर सकते हैं. तो पुअर डाइट में हाई सॉल्ट, शुगर, ट्रांस फैट्स, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड ओबेसिटी. और ये मेरा आखिरी मैसेज जो होगा वो भी यही होगा कि as long as we are not physically active, we are inviting to a lot of different problems, and our experts will again talk about this thing later on. तो इसमें ज़्यादा मैं इंडल्ज नहीं करता. स्मोकिंग एंड टोबैको यूज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज. ये भी हमने बात की कि हम इग्नोर कर रहे होते हैं स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ को फॉर वट एवर रीजन्स. स्टिग्मा एक है कि लोग, पीपल डोंट वांट टू बी लेबल्ड एज साइकियाट्रिक पेशेंट्स और वट एवर. उसके बाद टाइम इशू है कि किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना. तो ये ऐसा एक इशू है कि जिसको अगर हम एज अ नेशन नहीं एड्रेस करेंगे तो वी आर डीलिंग विद अ पॉपुलेशन हु वुड केयर अबाउट देयर ओन वेल बीइंग बिकॉज दे डोंट हैव टाइम. स्ट्रेस रिलेटेड इशू उनको एड्रेस करना इतना ही ज़रूरी जितना कि बाकी चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी है. तो फिर अब हमारे चैलेंजेस क्या हैं? तो चैलेंजेस, ये सबसे बड़ा चैलेंज लिमिटेड एक्सेस टू प्रिवेंटिव हेल्थ केयर. हमारा जो एक्सेस प्रिवेंटिव हेल्थ केयर तक लिमिटेड है. एक तो वैसे ही हमारी स्पेशलिस्ट टू जनरल पॉपुलेशन जो हमारा रेशो है वो भी बहुत ही डिस्टर्ब्ड है. वो हमारे पेशेंट्स को जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट तक एक्सेस वक्त पे नहीं मिलता. ऑल्दो वी मे स्टिल बी अहेड ऑफ प्लेंटी ऑफ नेशंस, स्टिल प्लेंटी ऑफ पेशेंट्स गेट निगलेक्टेड mainly because of the time or the money constraints. Late diagnosis because of lack of awareness. एक हमारा जनरल ट्रेंड है कि जो चीज़ टूटी भी नहीं हो उसको जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जब वो टूटती है तो फिर वो जुड़ नहीं सकती. तो ये वाली बात कि जब तक कोई चीज़ जिसको हम ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि समथिंग इज़ एट द रिस्क ऑफ बीइंग ब्रोकन, तो उसको हम अगर आइडेंटिफाई करके उस रिस्क को कम करते हैं तो वो चीज़ ब्रेक फिर बाद में नहीं करेगी. हार्ट अटैक को उस वक्त उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते आप जब एक दफ़ा हार्ट अटैक हो चुका हो. तो प्राइमरी प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज सुपीरियर देन सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशन. तो यहाँ पर भी वही हमने डिस्कस किया. हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, तो जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो आ रहे हैं कॉस्ट इज़ वेरी हाई एंड समबडी हैज़ टू बेयर इट. जस्ट बिकॉज सम इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड free care to the patient does not mean it's actually free. It's free to that particular patient, लेकिन somebody is paying for that bill. कहीं ना कहीं से वो पैसे आते हैं, चाहे वो टैक्स की शक्ल में हम पे करें या कैसे भी पे करें, वो हम लोग भी जनरली उसको पे हम ही कर रहे होते हैं. शॉर्टेज ऑफ स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर सर्जन, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एंड फैसिलिटीज़ टू कैरी दीज आउट. हमने ये देख लिया है पाकिस्तान में कि इलाज सारी चीज़ों के अवेल का मामला है. शॉर्टेज है इन लोगों की. इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं हमारे पास और बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनका नंबर बेस्ड अपॉन द बर्डन ऑफ दैट डिजीज़ इज़ क्वाइट लो. तो वो उनको नंबर को इंक्रीज़ करने की या अपनी डिजीज़ बर्डन को कम करने की ज़रूरत है. वट एवर वी फील वी शुड डू इट. या तो बर्डन कम करें या स्पेशलिस्ट बढ़ाएँ. ये अब हमारे हाथ में कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं. पुअर मेडिकेशन एडहेरेंस अमंग पेशेंट्स, उसकी भी कॉज हमें सबको पता है कि फाइनेंस इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर दैट. एक जो मरीज़ हमारा अगर 60,000 70,000 रुपये कमा रहा है
ये भी मैंने शायद थोड़े ज़्यादा ही बता दिए। चीज़ से हम शुरू करते हैं। हमारे ड्राइवर्स और दूसरे वो लोग जो लोअर कैटेगरी में आते हैं, उनकी कभी कभी दवाइयाँ ही 25-30 हज़ार रुपये की बनना शुरू हो जाती हैं। तो वो उन डिज़ीज़ से जब वो कोप करते हैं तो उनका मेडिकेशन से एडहियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हु कैन सपोर्ट, बट स्टिल वी हैव टू कंसिडर दैट इन माइंड कि उनके लिए खुराक ज़्यादा अहम होगी या मेडिकेशन ज़्यादा अहम होगी। आखिर में कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। वैस्कुलर डिजीज़ इज़ अ ग्रोइंग एपिडेमिक इन पाकिस्तान। तो नंबर तो इसका बढ़ रहा है। हम या तो प्राइमरी प्रिवेंशन पर जोर अगर नहीं देते तो फिर हम वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो अर्जेंट नीड फॉर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अर्ली स्क्रीनिंग एंड बेटर हेल्थ केयर एक्सेस, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पॉलिसी इंटरवेंशन, कंट्रोल ऑन अनहेल्दी फूड। अब ये मैंने थ्रो तो कर दिया है, बट आई डोंट नो इट विल बी एबल टू बी इम्प्लीकेटेड कि कहीं आप हेल्दी फूड को आप प्रमोट करने के लिए आप बैड फूड को आप अगर आप बंद करते हैं तो शायद आधे शहर के रेस्टोरेंट्स को बंद करना पड़ेगा आपको। कम्युनिटी एजुकेशन बिकम्स दी प्राइम टारगेट, कि हम कम्युनिटी को एजुकेट करें कि वो अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी करें, डिजीज़ को आइडेंटिफाई जल्दी करवाए, और जब भी कोई डिजीज़ किसी के साथ होती है तो अगर उसकी फॉलोअप उसका अच्छा होता चला जाए तो उसकी लाइफ बेहतर हो सकती है। So this was my presentation. Thank you very much, and we will be discussing some of it later on in the panel discussion. Thank you very much. Thank you, Salam Khan Sahab. It's very simple and interesting talk regarding the vascular disease incidence in Pakistan. Now I would like to ask Dr. Faryal Tariq to talk about the diabetes, where the diet is the important thing. Assalamu alaikum. I hope you can all hear me well. Today's topic is about the non-communicable diseases. कि ऐसी डिजीज़ेस जो कि किसी इन्फेक्शन या किसी चीज़ से नहीं लगती, लेकिन ये लोगों में ईदर थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स फ्रॉम द फैमिली या उनकी अपनी फ़िज़िकल मेकअप ऐसी होती है जिसकी वजह से उनको ये डिजीज़ेस हो जाती हैं। जिसमें कि जो टॉप प्रायोरिटी आजकल की डिजीज़ है, जो ग्लोबल हैज़र्ड है, दैट्स डायबिटीज़ मिलिटस। अच्छा, द थिंग इज़ दैट आई एम बेसिकली अ फिजिशियन और अ क्लिनिशियन। आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ डाइटिशियन, but I will try to focus more on the diet as compared to the medical therapy for the treatment of diabetes. Okay, if we talk about diabetes, अब यहाँ पे काफ़ी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं, स्टाफ के हैं, दूसरे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। So do you know what actually diabetes means? डायबिटीज़ से मुराद क्या है? डायबिटीज़ बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है पैसिंग थ्रू, यानी कोई चीज़ जा रही है, समथिंग इज़ पैसिंग। और उसके साथ जो मेलिटस लगा हुआ है वो एक ग्रीक वर्ड है, और ये ग्रीक वर्ड जो है इसका मतलब है स्वीट, समथिंग स्वीट। तो पासिंग समथिंग स्वीट, यानी कोई मीठी चीज़ जो है वो पास हो रही है। और वो पास कहाँ से हो रही है? जब हमारी बॉडी में मिठास, शुगर ज़्यादा हो जाती है तो थ्रू द किडनीज़ जो है वो पास आउट होती है, और जो हमारा यूरिन है वो हमें ये इंडिकेट करता है कि देयर इज़ समथिंग स्वीट विच इज़ कमिंग आउट इन द यूरिन। सो डायबिटीज़ मिलिटस इस वजह से ये नाम पड़ गया। Now, the diabetes, as I said, is a very common, non-communicable and a global hazard. In fact, it's kind of an epidemic, a non-communicable epidemic. और prevalence जो है डायबिटीज़ का वो इंक्रीज़ हुआ जा रहा है। सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया भर में ये इंक्रीज़ हो रहा है। पहले कुछ लोग थे जिनको डायबिटीज़ होती थी, जैसे अब से थोड़ी देर पहले डॉक्टर सोमिया थी, उन्होंने बताया कि पहले हम लोग बड़ी हेल्दी लिविंग करते थे, हम लोग वॉक करते थे, इतना मरगन खाना नहीं खाया करते थे, गाड़ियाँ नहीं होती थी, उसमें ट्रैवल नहीं करते थे, वॉक करते थे, बसों में जाते थे, तो उससे हमारी एनर्जी जो थी वो कंज्यूम होती थी और हम लोग हेल्दी रहते थे। लेकिन अब जैसे जैसे ज़माना चेंज हुआ है, थिंग्स हैव बीन इंक्रीजिंग, मोबाइल फ़ोन्स हैव बीन देयर,
remote controls have been there in our hands. So because of that, we are having a sedentary life. हमारे यहाँ physical activity ख़त्म होती जा रही है. If we talk about Pakistan, Pakistan is considered as the third commonest country in the world which has large number of diabetic patients. और कितने patients हैं? According to the IDF, International Diabetes Federation, जो कि इसी साल थाईलैंड में हुई है अप्रैल में, उसमें उनकी एटलस जो 11th एडिशन थी, उसमें ये चीज़ बहुत वाज़े तौर पे बताई गई है कि पाकिस्तान वैसे तो नंबर 3rd पे है, लेकिन प्रेवलेंस उसमें बहुत ज़्यादा है. यानी कि यहाँ के लोगों में जो प्रेवलेंस को इस तरह से कहेंगे कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं कंपेयर टू द पॉपुलेशन. तो दुनिया में पॉपुलेशन हमारी इतनी, लेकिन हमारे यहाँ का हर एक फ़र्द जो है वो डायबिटिक हुए जा रहा है. और कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त 33 मिलियन यानी 3 करोड़, बल्कि इनफैक्ट 3.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी जो है हमारी, वो इस वक्त डायबिटीज़ का शिकार है. और तकरीबन इतने ही इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्री डायबिटिक हैं, यानी जिनको अभी शुगर नहीं हुई है, वो डायबिटिक नहीं हैं, लेकिन वो प्री डायबिटिक कंडीशन में इस वक्त मौजूद हैं. और इसके अलावा अनडायग्नोज पेशेंट्स इतने हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे पास हर दिन जो है तकरीबन 4 से 5 मरीज़ ये लेकर आते हैं कि जी हमें शुगर हो गई. सो एवरी डे, एवरी आवर, एवरीवेयर इन पाकिस्तान, इन ईच एंड एवरी सेंटर इन हॉस्पिटल्स, people are coming in with diabetes. So it's a global hazard plus an international national hazard. अच्छा, अगर हम बात करें कि what is the reason? The reason is this. Whether ये circumference, waist circumference की मैं बात करती हूँ, चाहे ये मेल का हो चाहे फीमेल का हो, this is considered as the first and the foremost cause of diabetes mellitus. तो हमारे यहाँ के साउथ एशियन रीजन की कट ऑफ्स अलग हैं, वेस्ट सर्कमफ्रेंस की, कॉकेशियंस की अलग हैं, अमेरिकन्स की अलग हैं, यूरोपियंस की अलग हैं. अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो हम साउथ एशियन रीजन में आते हैं, और जिसमें कहा यह जाता है कि हमारे जितने भी मेल इंडिविजुअल्स हैं, अगर उनकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस 90 सेंटीमीटर्स या इससे ज़्यादा है, सो दे आर एट डेंजर. इसी तरह फीमेल्स में अगर उनकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है वो 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, दे आर ऑल्सो एट डेंजर. सो दिस इज़ द मेन कॉज. अब देखना ये कि ये क्यों हो रही है, वाई पीपल आर इंक्रीजिंग देयर वेस्ट सर्कमफ्रेंस. सो वाई इज दिस हैपनिंग? इट इज़ हैपनिंग बिकॉज देयर इज़ नो डाइट कंट्रोल, एंड सेकेंडली देयर इज़ नो फिज़िकल एक्टिविटी. जैसे अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो कम से कमतर होती चली जा रही है. सो नाउ व्हाट शुड वी डू? फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिज़िकल एक्टिविटी अगर हम करेंगे, कहते ये हैं कि हमें हर रोज़ तकरीबन मेल्स को 120 स्टेप्स पर मिनट लेने चाहिए और फीमेल्स को तकरीबन 80 स्टेप्स पर मिनट लेना चाहिए. तो रोज़ाना वॉक करें. किस टाइम पे वॉक करें? एम्प्टी स्टमक वॉक करें. अगर खाना खाने के बाद वॉक करना है तो तकरीबन 2 घंटे के बाद वॉक करें, ताकि जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके. अब फिज़िकल एक्टिविटी से क्या फ़ायदा है? फिज़िकल एक्टिविटी से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारा वेट रिड्यूस होता है, हमारी वेस्ट सर्कमफ्रेंस बेहतर होती है, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, शुगर्स कंट्रोल में आती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हों तो वो सब कुछ कंट्रोल में आते हैं. So physical activity is very important. A brisk walk daily 7 days a week for either half an hour or 15 minutes will make a lot of difference to a lot of people. Second thing, diet. अब डाइट किस किस्म की होनी चाहिए हमारी? हम लोग जो डाइट खाते हैं वो कहते हैं जी जो मैसर हुआ खा लिया, ठीक है, ओके फाइन, बट खाना भी वो खाएं जो कि आपके लिए हेल्दी हो. ऐसा खाना ना खाएं जो हेल्दी ना हो. और वो खाना कैसा हो? जो कि न्यूट्रिशन रिच तो हो, लेकिन उसके अंदर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी उसके अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम से कम हो. यानी हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो इवेंचुअली बॉडी में जाके शुगर बनाता है, तो हमें अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करना चाहिए. नेक्स्ट, टाइम ऑफ फूड एंड द टाइप ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब टाइम से क्या मुराद है?
टाइम से मुराद है कि लोग समझते हैं कि अगर वो 2 वक्त का खाना खा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। हम अगर मरीज़ों से पूछते हैं कि जनाब आपने नाश्ता किया, क्या किया? तो कहते हैं हमने तो नाश्ता ही नहीं किया। मैंने कहा वो क्यों? कहते हैं हम तो बस खाना खाते हैं दोपहर का कोई 12-1 बजे। तो मैंने कहा दिस इज़ वेरी अनहेल्दी, यानी आप सुबह उठते ही नहीं हैं। उन्होंने कहा हम सुबह उठते ही नहीं, हम तो सोते हैं और हम उठते ही हम 12-1 बजे हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी अनहेल्दी। तो टाइम जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो अल्लाह ताला ने जो दिन और रात बनाए हैं वो इसीलिए तो बनाए हैं कि दिन हुआ तो आँख खोलें, रात हुई तो सोने की कोशिश करें, है ना? तो जब हम लोग इस किस्म की चीज़ नहीं करेंगे सो ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगी। एंड आई हैव सीन, बिलीव मी, सो मेनी पेशेंट्स कमिंग टू मी, वेदर मेल और फीमेल, जिनका ये टाइम स्केड्यूल है कि वो लोग 12-1 बजे उठ के अपना खाना खाते हैं, वो सब के सब अनहेल्दी हैं। उनका सबका वेट इंक्रीज़ हुआ हुआ है, उन सब की वेस्ट सर्कमफ्रेंस बढ़ी हुई है, एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल एंड सो मेनी थिंग्स, and they think that they are just having 2 meals a day, which is totally unhealthy. So time is very important. And then what type of food मैंने अभी बताया कि ऐसा खाना खाएं जो कार्ब्स तो हों, लेकिन इतने कार्ब्स ना हो कि वो हमारी बॉडी में सिर्फ शुगर ही जाके बनाएं। हम प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स और मिनरल्स को एडिक्वेट अमाउंट में ना लें, क्योंकि लोग अक्सर जो सुबह नाश्ता करते हैं 12-1 बजे, वो नाश्ता ये करते हैं कि जी वो हलवा पूरी खा ली, isn't it? हलवा पूरी खा ली, छोले खा लिए, which is totally out of question कि भैया आपने पूरी में बहुत सारा फैट भी ले लिया, कार्बोहाइड्रेट भी ले लिया, छोलों में भी कार्बोहाइड्रेट था, और जब हलवा खाया तो वो तो है ही बहुत बड़ी रिफाइंड शुगर, जिसकी वजह से सारा मेटाबॉलिज्म जो है वो आउट हो गया। सो टाइप ऑफ फूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो क्या टाइप ऑफ फूड है वो मैं थोड़ा बहुत टच तो करूँगी, बिकॉज वी हैव नॉट मच टाइम ऑफ दिस। अच्छा, स्मॉल पोर्शन एंड साइजेस में हमें खाना खाना चाहिए। जैसे लोग हमारे पास आते हैं, आजकल आम का मौसम है, एंड यू नो पाकिस्तान में आम 4-6 महीने ही रहते हैं, 6 भी ज़्यादा कह दिया, 4 से 5 महीने होते हैं, और लोग चाहते हैं कि ज़्यादा आम खाएं, तो वो लोग एक आम पे इत्तेफाक नहीं करते। आई एम वेरी सॉरी, वो कहते हैं जी जब तक 5 आम ना खाएं ना नहीं होता, बल्कि आम की पेटियाँ ना खाएं तो उस वक्त तक उनको आराम नहीं मिलता। सो इसी तरह कीनू का मौसम आता है तो लोग कीनू की पेटियाँ खाते हैं। सो स्मॉल पोर्शन साइजेस, मॉडरेशन, ये तो अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि थोड़ा खाना खाओ, थोड़ा सो, थोड़ा हंसो, ज़्यादा चलो, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करो, तो ये चीज़ें तो हम लोग ने फॉलो करना ही छोड़ दी हैं। तो स्मॉल पोर्शन साइजेस वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो मैं उसकी मिसाल आपको इस फ़ोटो से दे सकती हूँ कि जैसे ये आप तस्वीर देख रहे हैं कि एक नान की तस्वीर है। नान इज़ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और इस नान में क्या होता है, यीस्ट मिला होता है विच बिकम्स स्टार्च। तो ये स्टार्च जो है ये हमारी बॉडी में जाके ना ओनली के शुगर को बढ़ाती है बल्कि हमारी वेट को भी इंक्रीज़ करती है। तो दिस शुड बी रिप्लेस्ड विद व्हाट, विद अ होल ग्रेन। आप चक्की के आटे की रोटी खाएं, लाल आटे की रोटी खाएं, दिस विल बी गुड फॉर यू पीपल। देन द ड्रिंक्स, whether they are soda drinks or whether they are juices, they should not be taken, but they should be replaced with fruits। कि आप फ्रूट का इस्तेमाल करें जिसमें आपको फाइबर भी मिल जाएगा और शुगर कम से कम जाएगी, और जितना एब्जॉर्ब होना होगा बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। Furthermore, rice, you know, biryani is very very important nowadays for us, but this should be replaced with boiled rice, 1 cup boiled rice, not more. So this is what I'm telling you is the type of food, and with small portions and sizes. Furthermore, foods to include, हमको क्या चीज़ें खानी चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, विच आर कॉल्ड एज नॉन स्टार्ची फूड्स, जिसमें वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, लेंटल्स आ जाती हैं, पल्सेस आ जाती हैं, ये हम खा सकते हैं। इसके अलावा लीन प्रोटीन्स में वी हैव टोफू इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, देन वी हैव वाइट मीट लाइक फिश, एंड वी हैव दिस चिकन, पोल्ट्री, दिस कुड बी यूज। देन वी हैव हेल्दी फैट्स में हम क्या ले सकते हैं, नट्स, सीड्स, oils are very important। Canola oil or the olive oil, they have the omega-3 fatty acids which are considered as safe for the health compared to the 6 omegas which are more unhealthier oils। Then we can use whole grains में हम जैसे we can use whole wheat, bran, in fact they could be good for our health। Then fiber, they give us good fiber। Then fruits, of course, as I told you that instead of taking the juices, we should take the
fruit by itself, which gives us fiber as well and controls the sugar. And then finally, low dairy fat should be taken in our food, जिसमें skim milk आ जाता है या low fat milk आ जाता है, which is good for our health. Now, what foods to limit? हमें कौन सी foods हैं जो कि हमें limit करना चाहिए? So, foods to limit the added sugars. किसी भी चीज़ में sugar को add ना करें. चाय पी रहे हैं, ओके, फीकी पी लें, उसमें कुछ ना sweetener डालें और ना ही refined sugar डालें. What else? Refined grains, white bread, as I said, is not good for our health. White rice, not good for our health. Pastries, all bakery items, not good for our health. Saturated trans fats, जिसमें fried foods आ जाते हैं, baked foods आ जाते हैं, they are also causing trouble to not only to diabetes, to the heart, increasing the cholesterol level as well. Then alcohol, of course, no consumption. Then, okay, now this is a plate that shows that what type of food one should take in a day or at a time. So you can see that we have divided the plate into 4 different compartments. First consists of the fruits, second is the vegetables, and especially the leafy vegetables, not the starchy vegetables or the ground or the underroot vegetables like potatoes, they should not be consumed much. Grains, any kind of grain, and protein, especially the lean protein, and then of course dairy. तो अब अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या आ जाता है? इसमें ये आ जाता है कि डेयरी में आप देखें टॉप मोस्ट ड्रिंक skim milk or 1% milk. Then fill 1 quarter with a whole grain or starchy vegetables. You can eat a small amount of fresh fruit. Fill 1 quarter with a lean protein like a poultry or a fish. Fill half with non-starchy vegetables. So this is the type of plate we should have. But a Pakistani plate has what? A Pakistani plate has naan or roti, salan. But if we add vegetables with it, तो हमारा आधे से ज़्यादा पेट जो है वो हमारे vegetable से ही यानी हमारी सलाद से भर जाएगा. So we will eat less. Similarly, this roti can also be taken over by rice. One could either take a rice or चावल. हम जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें शुगर हो गई है, हमारा तो खाना पीना बंद कर दिया डॉक्टर ने. मैंने कहा क्या बंद कर दिया है? वो कहते हैं चावल नहीं खाओ, रोटी नहीं खाओ, नान नहीं खाओ, अंडा नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ. मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप सब कुछ खा सकते हैं बट इन स्मॉल पोर्शंस एंड साइजेस, इन मॉडरेशन. चावल खाएं, ज़रूर खाएं, मैं तो कहती हूँ रोज़ खाएं, लेकिन किस टाइम पे खाएं? दिन में खाएं. जबकि आप दिन में दोपहर के लंच में आप खा लें, आप चलते फिरते रहेंगे, आपका ये हज़म हो जाएगा. और कितना राइस खाएं? नॉट मोर देन 1 कप कुक्ड राइस. 1 कप कुक्ड राइस से ज़्यादा राइस ना खाएं. खाएं, रोज़ खाएं. रोटी खाएं, रोज़ खाएं, होल ग्रेन की खाएं, बिल्कुल खाएं. 1 से 1.5 रोटी खाएं, जो आपके BMI आपके वेट के हिसाब से जो कैलकुलेट हो सकती है वो ज़रूर खाएं. चावल को बंद नहीं किया, रोटी बंद नहीं की, अंडा बंद नहीं किया, डबल रोटी कुछ बंद नहीं किया, आप खाएं मगर थोड़े. ये नहीं कि एक पेशेंट आते हैं कहते हैं जी हम 4 स्लाइस खाए, तो भी 4 स्लाइस के बाद आप 2 कर दो, 1 कर दो, लेकिन खा लो, लेकिन इतना ज़्यादा ना खाओ कि वो आपकी मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल आउट कर दें. ये एक चार्ट दिया जाता है, अक्सर डाइटिशियंस जो हैं वो अपने पेशेंट्स को देते हैं ज़ियाबीतस के मरीज़ों के लिए. इसमें इन्होंने ना बड़ा अच्छे कलर्स डाले हुए. उन्होंने डाले हुए रेड, येलो एंड ग्रीन. रेड से मतलब है कि जो रेड चीज़ आपको बॉर्डर में नज़र आ रही है ये तो आपको बिल्कुल नहीं खानी है. जस्ट लाइक अ रेड सिग्नल, स्टॉप, यू शुड नॉट कंज्यूम दिस फूड. यू शुड स्टॉप दिस फूड. फिर क्या चीज़ खा सकते हैं? येलो एंड ग्रीन. येलो भी मॉडरेशन में खा सकते हैं और ग्रीन जो है वो बहुत अच्छी तरह से खा सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट a diabetic diet or a diabetic chart shows to an individual. अच्छा, अब आप बहुत से लोग बात करते हैं, हमारे अक्सर पेशेंट्स भी आते हैं और दूसरे लोग भी जो हमसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि जनाब ये जो आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का दौर चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो अब आप बताएं इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या चीज़ है और हम लोग कितना करते हैं? हम लोग क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग में बताई गई कितने घंटे की हो सकती है? 12 घंटे की भी हो सकती है, 10 घंटे की भी हो सकती है, 8 घंटे की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, 1 मील अ डे भी हो सकता है, और स्किपिंग द मील यानी बिल्कुल कुछ भी ना खाएं. तो मेरे ख्याल से हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, जो कि रमज़ान के महीने में करते हैं, है ना. हम लोग सुबह सहरी पे खाते हैं और फिर उसके बाद अफ्तारी पे खाते हैं, बीच में हम कुछ नहीं खाते. लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये होता है कि आप
बीच में थोड़ा सा पानी तो पी सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग अगर साल के 12 महीने में से 1 महीना अगर रमज़ान कोई चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, तो हम अपने बाकी महीनों में क्यों नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज़ा रखें, लेकिन इस किस्म की फास्टिंग जो है वो तो हमारे रिलीजन में वैसे ही बता दी गई है कि इसी को इंटरमिटेंट काइंड ऑफ फास्टिंग है। कहीं कहीं रोज़ा जो है वो हमारे यहाँ 15 घंटे का होता है। अगर आप नॉर्दर्न एरिया में चले जाएँ, कनाडा की तरफ चले जाएँ, तो वहाँ तो 22-22 घंटे के रोज़े होते हैं। मुश्किल से 2 घंटे जो है वो कुछ खा पी सकते हैं और बाकी 22 घंटे का वो रोज़ा रखते हैं। सो दिस काइंड ऑफ जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो अच्छी बात है, लेकिन पता क्या चला है, पता ये चला है कि देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस in people who do intermittent fasting और and who does control good diet। इसलिए HbA1c जो है वो भी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं रखता। HbA1c क्या चीज़ है? HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जो हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी में शुगर की वैल्यू कितनी चल रही है। वो एक परसेंटेज के हिसाब से बताता है। गुड परसेंटेज जो है वो 6 से नीचे होनी चाहिए और बैड परसेंटेज जो है वो 6 से ऊपर कहीं भी जा सकती है, 8, 10, 12, 15 कब कितनी भी जा सकती है। तो जिन लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग की और जिन लोगों ने नहीं की, उनकी मेटा एनालिसिस से पता चला कि HbA1c दोनों में कोई खातिर खा फ़र्क नहीं किया। हाँ, क्या चीज़ बेहतर हुई? वेट रिडक्शन ज़रूर बेहतर हुआ। वेट रिडक्शन 1.7 kg का वेट जो था वो तकरीबन काउंट हुआ, लेकिन रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया बढ़ गया। वो इंडिविजुअल्स जो कि डायबिटिक्स हैं और जो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स यानी दवाएं खाते हैं शुगर लो करने के लिए, या जो इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं शुगर लो करने के लिए, उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो शुगर्स भी कर सकता है। तो ऐसा खाना खाया जाए, इस तरह से खाना खाया जाए जो कि हमारी हेल्थ एक्सेप्ट कर सके, हमारी चीज़ों को सही कंट्रोल में रख सके, हमारा कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर, कार्डियक इफेक्ट्स, किडनी फंक्शंस और इवन हमारी मेंटल हेल्थ, इन सब को सही तौर पे कंट्रोल कर सके। वो वही है जो कि हम एक अच्छा डायबिटिक चार्ट बता के अपने मरीज़ों को दिखा सकते हैं। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। I would now like to ask Dr. Irfan Lutfi to have his talk regarding the acute stroke intervention. Basically, in NICVD, Dr. Irfan Lutfi is the pioneer of starting this acute stroke intervention in 2022, and later on we also started this acute stroke intervention in Tanod Khan and Sakhar. He is the lead person and he has trained all the fellows for acute stroke intervention, and so far we did almost 400 in Karachi and then almost 200 at Tanawat Khan and 100 around Sakhar. Actual number will be given by Irfan Lutfi Sahab. Thank you, Dr. Sardati, for great introduction. Can I have first slide? So, thank you very much, Dr. Abdul Salam and Dr. Faryal. I endorse the burden of vascular diseases as a stroke intervention. So, first of all, burden of a stroke is very high in all over the world. This is the number 1 cause of morbidity worldwide and number 2 cause of mortality. So, the estimated annual incidence in all over the world is very high, but in Pakistan is 250 per 100,000. According to a study published in JAMA in 2020, every day in Pakistan there are 1,000 registered cases of acute stroke. Out of 1,000, 400 were died and 600 were disabled. So you can have an idea how much is the burden in the society. And unfortunately, 2 leading causes of stroke. Number 1 is hypertension and number 2 is diabetes. As you already said, every 3rd person above the age of 50 is hypertensive in Pakistan. Unfortunately, 20% are below the age of 50. And as you already said, diabetes is number 3rd or number 1 country. Pakistan is number 1 or number 3rd country in all over the world. So burden is very high. So this is the slide
हर 4 में से एक बालिग इंसान को ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी फालिज हो सकता है. This is, आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ अ WHO सेड कि इतना स्ट्रोक का बर्डन है दुनिया में. तो स्ट्रोक की ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली स्ट्रोक, इफ वी आर कमिंग टू 1995, देयर इज नो स्ट्रोक ट्रीटमेंट अवेलेबल इन द वर्ल्ड. किसी को फालिज हो गया तो कोई रिकमेंडेड रजिस्टर्ड ड्रग नहीं थी कि फालिज का इलाज कर सके. द ओनली थिंग इज लेफ्ट इज रिहेबिलिटेशन. Then in 1996, what happened in 1996? There are comprehensive trial worldwide, is NINDS trial. It's a very landmark trial in 1996. According to that trial, the first worldwide registered drug is Altiplase (IV-TPA) in less than 3 hours window. This is the first drug in 1996. After that, in 2008. Another trial came up in the market, is called ECASE-3 trial. According to this trial, IV-TPA window is extended from 3 hours to 4.5 hours. Then what happened in 2015? The game-changing year 2015. And fortunately, I trained in 2017-18 from USA. The 5 comprehensive trial, Mr. Clean, Escape, Extend, IS, Swift, Prime, and Revaxed. These trials change the dynamics of acute stroke, change the treatment of acute stroke. Then there's an endovascular treatment start available in less than 6 hours for the small course. Then what happened in 2018? Again, 2 trials come up in the market, Dawn and Diffuse, very famous trials. According to these trials, EVT treatment extended from 6 to 24 hours, is still for the small course. And 2022-23, 3 more trials come in the market, Select2, Angels, Aspect, Rescue Japan Limit. According to these trials, the window is 0 to 24 hours, even for the large course. And then in 2024, 3 more trials came up in the market, Tesla, Tension, and Last. These trials endorsed the treatment of 2022 and 23. Then in March 2025, a new drug came up in the market, is called Tenecteplase. It's more aggressive, small dose drug, right? A bolus injection, very safe drug. This drug is available all over the world, but not in Pakistan. I asked the company who is bringing this drug in Pakistan, from the next month, he promised to bring this Tenecteplase in the Pakistan market. So in April 2024, new trials came up in the market, Escape, Vivo trial, Distill, and Discount trial. According to these trials, you can also offer endovascular treatment in MEVO disease, like medium vessel occlusion. From March 2025, before that, we only offer large vessel occlusion. Now we are offering a small vessel disease. What are the small vessel disease in the intracranial circulation? I will tell you later on. So, as I already said, leading cause of death, second leading cause of death after myocardial infarction. And fortunately or unfortunately, I am working in National Institute of Cardiovascular Disease. This is one of the largest center where we are dealing with myocardial infarction, leading cause, and second leading cause of death. And we started acute stroke intervention treatment in NICVT in 2021. And there's no center in Pakistan who are providing 24/7 mechanical thrombectomy services, which is acute treatment after 2015. There are only 2 centers in Pakistan. One center in Rawalpindi Institute of Cardiology in Islamabad, and second is National Institute of Cardiovascular Disease in Karachi. And we have 3 centers. One in Tando Muhammad Khan and one is Sakkar. Overall, if you calculate 3 centers, we done more than 700 mechanical thrombectomies, which is the largest number in all over the Pakistan.
So as you know, stroke burden is very high. In low and middle income countries, stroke frequency increased by 100% between 1997 and 2008. There has been a 26% rise in the global stroke mortality over the last 20 years. And over the last 4 decades, high income countries saw a 42% reduction in the stroke incidence. Low income countries experience a 100% increase. Why? Because we don't have a PPA facilities in all over Pakistan. We don't have a mechanical thrombectomy services in Pakistan. So that's why in low socioeconomic countries, stroke burden is increasing. So this is a very simple slide can understand when artery is blocked, which is shown here. There's a small area of the brain is immediately affected and become dead. And this is almost at less than a 20% area. And the surrounding area, which is called a penumbra area, oligamic area, which is getting supplied 60 to 80% or 20%, this is the target area after mechanical thrombectomy. If we can open the artery, we can pull out the clot, then we can save the large 80% penumbra area to become dead in future if we are not offering the treatment. And this area is basically getting a weak supply from the collateral circulation. If we can open the main artery, then we can save this area. What is mechanical thrombectomy for the audience? Is a minimally invasive endovascular procedure to remove the clot from the large blood vessel in the brain. What are the large blood vessels? ICA, MCA, ACA up to M1 or ACA up to A1. Vertebral artery, basilar arteries are the large vessels. And here you can see IC occlusion in the middle side or top row, and there's a MCA dense sign in the M1 segment. There's a clot setting in the left M1 segment. In the below two slide, there's a basilar occlusion, and on the right side, there's a PC occlusion. These are all the large vessels. Before offering the treatment, we have to take the first native CT scan. Native means a plain CT scan to see the aspect score of the brain. The posterior aspect score is different, and Alberta anterior circulation aspect is different. So once we decide the aspect score is more than 6 or 7, then we can offer the treatment after contrast injection. IC anatomy is very important. Where to land the balloon guide catheter, where to take the micro catheter, and we have to know the branches of the ICA. So here you can see M1 segment. Up to here, this is a large vessel. After the bifurcation of M1 at the region of the insula, M2, M3, M4, all are the medium vessels. Now we are also offering M2 and M3 diseases, mechanical thrombectomies in NICVD. So there are basically two techniques of mechanical thrombectomy. One is Solumbra with the help of a strand retrieval device, and one is the ADOPT technique with the help of just aspiration of the clot with the large bore catheter. I will show you in the images how can we perform these two procedures. Here I want to show you the power of tower. As much as coaxial technique you use, guider, distal access catheter, micro catheter, and then wire, as much as coaxial technique is provide more stability in the mechanical thrombectomy procedure. These are the different strand retrieval devices. Mostly in Pakistan, we use Solitaire and Eric. We have a more experience of Medtronic device Solitaire, but we have a little experience of Trevo, which is from the Stryker. Mercy device on the left side is very old device now. Nowadays, they are out of the shelf. This is an animated video just to understand how the mechanical thrombectomy is performed. This is a guider catheter, which is
you can see in the blue color in the cervical part of ICA. From there, you can take the wire up to the occluded segment of left M1. This is a clot is sitting. Try to cross O14 wire through this clot. Once you manage to cross the wire through the clot, you can track the microcatheter, which is 2.1 French. Once you cross the microcatheter distal to the clot, you can pull out the wire and deploy the stent within the clot. This is a stent retrieval device. You deploy this device, and then with the help of suction, you can pull out the clot from the microcatheter after the inflation of the balloon guide catheter to prevent the distal embolization. So this is a technique, basic technique. This is a patient in which right M1 is occluded. You can see trying to cross the wire through the clot. Can you go back one slide? Yes. Can you run the right one? Once we cross the wire from the clot, then we perform the check injection to see the distal. Next, please. Distal patency of the blood. Then we deploy the stent retrieval device within the clot on the right side of the image. There are 4 markers are visible. And then after mechanical thrombectomy, we do the angiogram. You can see we achieve TK3 flow after retrieving the clot from the M1 segment. There is a lateral projection and there is a frontal projection. Another patient in which this is a left common carotid artery run, and you can see the left M1 is occluded in this. Previous images are from the Solombra technique. This one is ADOPT technique. We try to pull out the clot with the help of distal large bore distal catheter. You can see after retrieving the clot, we achieve the TK3 flow on the left hemisphere of the brain. This 60 years old male patient post-cabbage came with right-sided weakness, aphasia and facial weakness. His NIHS score is 17. Patient was unable to move right lower limb and upper limb. We made these videos after permission of the patient and just to show the public how effective is the treatment. Then we performed the angiogram. You can see left M1 is occluded. This video is after the mechanical thrombectomy. Patient is able to move his right limb. Previously he was aphasic, now he is talking. So he is moving his right upper limb just after the procedure in the ICU, same day. This is a miracle of mechanical thrombectomy, how mechanical thrombectomy is effective. We have hundreds of videos of the patient. This is another patient, 55 years old, known case of rheumatic heart disease, MS, AFib, came with complaint of aphasia, confusion, nausea and vomiting. And you know posterior circulation is high mortality. If there is a thrombus in the posterior circulation, it's more than 90-95% mortality. You have to take the patient in the angio suite and try to pull out the clot. So this is a basilar thrombus. On the right side of the image, there is a basilar thrombus. We attempted this patient, and on the same day, patient was sitting and we achieved posterior circulation after retrieving the clot. On the next day, patient was walking in ICU. You can see here.
and after 3 days, patient discharged from the hospital. Thank you very much. This is our stroke team in NICVD Karachi. Thank you. If you have any question, please. Thank you, Lutfi Saab. Now I would like to ask Dr. Kausha Anjum regarding the healthy body weight and its management. Good evening, the field of physical therapy, to talk about the healthy weight management. There won't be a presentation, so you'll have to bear up with my face, and we'll have a little heart-to-heart, precise talk over the strategies that can be done. This one? Okay, am I audible? Okay. So I was saying that I don't have that presentation with me here, so you'll have to get yourself engaged towards me, and let's have a little heart-to-heart talk about the healthy body weight management. Talking about the healthy body weight, what is the first parameter जो एक इंडिविजुअल घर पे इजीली एक्सेस कर सकता है और अपने आप को ट्रैक कर सकता है? टेक सेवी लोगों के लिए बहुत सारी टेक्निकल डिवाइसेस आ गई हैं जिससे वो अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं, बट वन ऑफ द moderately authentic pattern is the weight management and tracking by BMI. Body mass index is basically a chart जो adolescents and adults के हिसाब से आपके weight and height के comparison से आपको ये track करने में help कर सकता है कि what is your body weight and what shall be the ideal weight. अगर आप 30 की रेंज को क्रॉस कर चुके हैं या उस रेंज तक पहुंच चुके हैं मेरी तरह, तो कंग्रेचुलेशंस, आप ओबेसिटी की रेंज में आ गए हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सर्वे, पाकिस्तान में 43.9% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. अगर हम हायरार्की वाइज देखें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में everybody was talking about different diseases, but at the end sedentary lifestyle की वजह से obesity is one of the major most root cause जिसका track रखना ज़रूरी है. तो अब घर जाके हम सबसे पहले तो BMI चार्ट देखेंगे और उससे हम ट्रैक करेंगे कि हमारा बॉडी वेट क्या है. Now coming up to the limitations of this, क्योंकि जेंडर, एथनिसिटी, आपका एज, उसके हिसाब से आपका बॉडी फैट जो है वो एक ख़ास अंदाज से आपके ऊपर डिपॉजिट होता है. सो BMI इज़ नॉट द मोस्ट ऑथेंटिक पैटर्न जो आप अप्लाई कर सकते हैं. तो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर पॉन्ड्रल इंडेक्स इज़ द रेशियो जिसको हम देखते हैं. हिप वेस्ट रेशियो है जिसकी कैटेगराइजेशन या उसका जो रेशियो है उसको चेक करने से आपको ये पता चल सकता है कि आप कार्डियक डिजीज़ के किस रिस्क पर हैं या ऑल द डिजीज़ which are associated with one of this comorbid that's called obesity, इसको आप ट्रैक कर सकते हैं. So the percentage of body fat has to be tracked with the lean body mass too. कुछ लोग हमें अक्सर एज अ फिज़िकल थेरेपिस्ट जब क्लिनिक में हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हमें कहते हैं कि हम तो अपना वेट का ट्रैक रखते हैं, अपना पोर्शन कंट्रोल भी करते हैं और घर के सारे काम करते हैं, उसके बावजूद वी आर नॉट एबल टू मैनेज दी हेल्दी वेट. तो ऐसी क्या चीज़ें हैं या ऐसे क्या अप्रोचेज़ हैं मल्टी डिसिप्लिनरी जिसको हम लेके चलें तो हम अपना बॉडी वेट मैनेज कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट दैट, सबसे पहले घर के काम आर नॉट गोइंग टू हेल्प अस आउट विद दी वेट मैनेजमेंट इन पर्टिकुलर. यस, वो हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल को मोल्ड करने में तो हेल्प कर सकता है लेकिन हमारी वेट ट्रेनिंग में हमें हेल्प नहीं कर सकता. एरोबिक एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दैट एंड डेली 30 to 40 मिनट्स का एक रेगुलर वॉक आपकी ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए, आपकी कार्डियक फिटनेस के लिए और आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी और डिजीज़ से बचाने में हेल्पफुल है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट यूजुअली पीपल आस्क के ओके, tracking this के घर के काम are not going to help us out with the aerobic activity in particular, तो हमें एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और ये रिजीम हमें जनरल नोट के ऊपर एज ए ले पर्सन अपने लिए किस तरीके से प्लान करनी चाहिए. तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं
जो मैं मेंशन करूँगी। डॉक्टर साहिबा ने भी मेंशन किया कि बाकायदा मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है जो आपको इस लेवल तक लेके जाती है, तो उस अप्रोच की बात हम बाद में करते हैं। आपको अपने इस 30 to 40 मिनट्स वॉक के लिए अपने लिए टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अपने वेट को ट्रैक करें, अपनी एक्सरसाइज करें। इस इन्वेस्टमेंट को आज अगर हम 40 से पहले इन्वेस्ट कर लेंगे तो 40 के बाद हम बहुत सारी और चीज़ों से बच जाएंगे जो हमें आगे जाके हमारी पॉकेट में भी इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी और हमारी मेंटल हेल्थ पे भी टॉल लेकर आएगी। 30 minutes to 40 minutes of walk में early 5 minutes and last 5 minutes are supposed to be for the warm up and for the cool down, और आपकी बेरेबल पेस में कंटिन्यूटी के साथ एटलीस्ट 30 मिनट्स का वॉक आप कंटिन्यू करें तो आप अपना बॉडी वेट बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। उसको ट्रैक करने के लिए आजकल बहुत सारी टेली हेल्थ डिवाइसेस, टेली क्लिनिक्स आपको हेल्प आउट करते हैं। लेकिन अगर हम लाइफस्टाइल मेडिसिन की बात करें तो a lot of people in the youth and the adolescents are facing the high cortisol levels, and वो भी associated है stubborn body fat and weight के साथ। तो lifestyle medicine and behavioral counseling is also equally important with the exercise plans. Other than this कि ये जो general exercises हैं आप physical therapists को या अपने fitness trainers को approach कर सकते हैं for an individualized plan for yourself. In the same way, lifestyle medicine में या lifestyle modification में आपको personalized lifestyle interventions जिसमें combination of physical activity, nutrition, आपका sleep cycle, आपका hygiene, आपकी stress management की foundation involved है। Cognitive behavioral therapy is very important in managing the stress and weight management. Talking about this approach कि इस चीज़ को अगर हम sustainable point of view से देखें और लॉन्ग रन में इसको ओबेसिटी के प्रॉब्लम को या वेट मैनेजमेंट को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, तो स्कूल एंड वर्क प्लेसेस के ऊपर अवेयरनेस बेस्ड प्रोग्राम्स आर दी पर्टिकुलर अप्रोचेस, स्क्रीनिंग अप्रोच स्टूडेंट्स की, छोटे बच्चों की जो ओबेसिटी लाइंस क्रॉस कर रहे हैं या एट द रिस्क ऑफ ओबेसिटी हैं, उसको अगर हम चैनलाइज कर लेंगे तो हम आगे जाके वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से देख सकते हैं। Coming up to the medical and pharmacological support, to some extent that is helpful. Mobile health tools का मैंने जिक्र किया। अगर हम पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो हमें NGOs के साथ या अर्बन पॉलिसीज़ डेवलप करते हुए इन चीज़ों को कंसिडर करने की ज़रूरत है कि हम कितने ग्रीन स्पेसेस एंड एरियाज़ दे रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड वेट मैनेजमेंट के लिए। सो मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी वेट इज़ समथिंग विच इज़ crucial to avoid these non-communicable diseases in particular. Landmark study हमें ये बताती है 2010 के सर्वे में that among young adults or among the middle adults from the age of 20 to 60, young adulthood से middle adulthood and then late adulthood तक, the combined prevalence of overweight and obesity has now crossed 59.9% in Pakistan, and nationwide survey of the data finds out that 37.8% are the women. वैसे women तादाद में भी ज़्यादा हैं तो एक reason ये भी हो सकता है। So summarizing this up, community based approach, screening approach, अपने आप के health को track करना, weight को track करना, sedentary lifestyle से दूर रहना, अच्छी न्यूट्रिशन या डाइटरी गाइडलाइंस आपको डॉक्टर साहिबा ने दी थी उनको फॉलो करना, पोर्शन कंट्रोल को मेंटेन करना, ये सब एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है टुवर्ड्स दी हेल्दी बॉडी वेट मैनेजमेंट एंड वी शैल फॉलो दैट। थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Kausha. Now I would like to request Dr. Waqas Khalid to talk about dyslipidemia. So, thanks for nice presentation, and all the previous panelists have made my job very easy. Basically, all the precautions and dietary habits which have been discussed ultimately help in
reducing help in reducing cholesterol levels and controlling dyslipidemia. So अभी तक जितनी भी हमने डिजीज़ डिस्कस की हैं, जिसमें स्ट्रोक, डायबिटीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, उन सब का प्रेवलेंस पे भी प्रीवियस पैनलिस्ट ने रोशनी डाली। उन सब में जो सबसे मोस्ट प्रेवलेंट है वो डैट इज़ डिसलिपिडीमिया, डैट इज़ रेज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। और आप यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो दैट देयर आर आर्टिकल्स which have emphasized that prevalence of dyslipidemia is up to 95% in certain pockets of population in Pakistan. 95%, that is very high. So how to control it and how to avoid it? So sometimes it is not possible to control raised cholesterol levels if it is associated with genetic risk factors, but still we can control the havoc or diseases or the pathology which will be caused by this raised cholesterol level. So I'll summarize it in 4 basic points. So first of all is dietary intervention. As Dr. Faryal has already told, so वो कौन सी diets हैं जिनसे cholesterol levels control किए जा सकते हैं. Normally हम अपने patients को ये बताते हैं कि जी चर्बी और चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें. तो क्या हर फैट और हर ऑयल सेहत के लिए बुरा है? नहीं, ऐसा नहीं है. हमें पेशेंट को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा बिटवीन गुड फैट्स एंड अनहेल्दी फैट्स. सो सबसे पहली चीज़ मेडिटेरेनियन डाइट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फिश और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स का कंजम्पशन शामिल है. What is monounsaturated fats? So remember, monounsaturated fats and polyunsaturated fats, ये बड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन इसको आपके लिए सिंपल कर देता हूँ कि वो तमाम फैट्स जो कि एनिमल बेस्ड प्लांट बेस्ड फैट्स हैं और ऑयल्स हैं, जिसमें सोयाबीन ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स हैं. अगर इनको कंज्यूम करेंगे तो हमारा LDL कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल्स को कम करने में ये हेल्प करेगा. तो हमें प्लांट बेस्ड ऑयल्स लेने हैं और रेड मीट को अवॉइड करना है टू कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. सेकेंडली, देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस सॉल्ट इनटेक. वी कॉल इट डैश डाइट, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन. इसमें क्या है, रेड मीट को अवॉइड करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सैलड्स का कंजम्पशन ज़्यादा होती है और सॉल्ट इनटेक को कम किया जाता है. ऑल्दो दिस वाज द डाइट इंट्रोड्यूस्ड टू रिड्यूस हाइपरटेंशन, लेकिन इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी कम होते हैं. अब आपके जहन में आपको ये पता होना चाहिए कि 2 तरह का कोलेस्ट्रॉल है. जब भी लैब टेस्ट एडवाइस करते हैं हम किसी पेशेंट को, तो उसमें LDL कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसके लेवल्स हम कम रखते हैं. वो पेशेंट जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं या डायबिटीज़ के. एंड द अदर कोलेस्ट्रॉल इज़ HDL कोलेस्ट्रॉल, विच इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल, which helps us in preventing atherosclerosis. So अभी तक ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो HDL कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को ड्रामेटिकली राइज करे. हमारा टारगेट होता है जितनी भी मेडिसिन्स हैं वो LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं. तो जो मेरे से पहले के पैनलिस्ट ने सारा एक्सरसाइज पे रोल दिया, एम्फेसाइज किया है. तो एक्सरसाइज का अल्टीमेटली फ़ायदा क्या है? जितनी भी एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, स्विमिंग हो गई, वॉक, ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग, इन सब से HDL कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है. सो दिस इज़ द बेस्ट थेरेपी टू इंक्रीज द HDL कोलेस्ट्रॉल. एंड टू रिड्यूस LDL कोलेस्ट्रॉल यू कैन टेक प्लांट बेस्ड फैट्स, जो कि कॉलीफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं. एंड मैंने आपको मोनोसैचुरेटेड फैट्स और एनिमल फैट्स और प्लांट बेस्ड फैट्स और एनिमल फैट्स का डिफरेंस तो बता दिया, लेकिन इन सब में जो डेडलीस्ट फूड है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए, दैट इज़ ट्रांस सैचुरेटेड फैट्स. सो
what are the diets which include trans-saturated fats? So it is the refined foods. ट्रांस-सैचुरेटेड फैट्स नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होते, ये हम खुद प्रोड्यूस करते हैं. मार्जरीन हो गया, इस तरह के जितनी भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनमें जो ऑयल्स और यूज़ होता है, जो फैट यूज़ होता है, डेट इज़ ट्रांस-सैचुरेटेड फैट. ये ना सिर्फ आपके LDL लेवल्स को बढ़ाता है बल्कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो कि डेपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल विद इन द आर्टरीज है, उस प्रोसेस को भी इन्हांस कर देता है. सो हमारा जो पहला पॉइंट था कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने का, डेट वाज डाइटरी मॉडिफिकेशन. और टू समराइज इट, इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ प्लांट बेस्ड फैट्स, reduce the consumption of animal based fats, that is red meat, and increase the consumption of food which have antioxidants like vitamin E. What the vitamin E does? Basically, it reduces the oxidation of cholesterol within the arteries and reduces the process of atherosclerosis. So, what are the foods? It is basically fruits, apples, berries. These sort of fruits have antioxidants like vitamin E, which will help in reducing oxidation of cholesterol, that is LDL cholesterol, within the lining of arteries. Now, coming back to the second modification of reduction in cholesterol level is pharmacological intervention. पेशेंट्स आपके पास आएंगे कि डॉक्टर साहब मैं बहुत एहतियात करता हूँ लेकिन फिर भी मेरा कोलेस्ट्रॉल 7 मिलीमोल 8 मिलीमोल जो कि बहुत हाई है, इतना है. ऐसे पेशेंट्स बेसिकली यंग एज में ही अगर इनको हम असेस कर लें थ्रू स्क्रीनिंग, दे आर पेशेंट्स ऑफ फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया और दे मे बी होमोजाइगोट्स और हेटेरोजाइगोट्स, बट आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल. ऐसे पेशेंट्स में खाली डाइटरी मॉडिफिकेशंस से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम नहीं होंगे, उनमें डिफरेंट मेडिकेशंस देनी पड़ती हैं जिसमें स्टैटिन्स हैं, एजिटिमाइब है और आजकल जो नई लेटेस्ट ड्रग्स आ रही हैं जो कि इन पेशेंट्स में एवरी 3 मंथली एंड 6 मंथली इंजेक्शंस लगते हैं, PCSK9 inhibitors. The only issue with these medication is the cost effectiveness. They are very costly, around 3 to 4 lakhs का एक इंजेक्शन है if we advise these medicines. But as the time evolves, जब और competitors आएंगे, इनकी cost आएगी, they will be really helpful for the patients of familial hypercholesterolemia. So we have discussed diet and pharmacological interventions. And the third and most important is behavioral therapy. पेशेंट को कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अपना लाइफस्टाइल उसने कैसे मॉडिफाई करना है, दैट इज़ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन. हमारे यहाँ बाहर रिलैक्स करने का कॉन्सेप्ट क्या है, बाहर खाना खाने चले जाते हैं. हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हाइकिंग का, एक्सर्ट करने का. हमारी कोशिश होती है गाड़ी उस जगह पार्क करें जो किसी भी शॉपिंग मॉल के बिल्कुल सामने है ताकि हमें 2 कदम भी ना चलना पड़े. तो एज अ मुआशरे को हमें ट्रेन करने की ज़रूरत है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी हेल्थ के लिए भी बेहतर है और हमारी पॉपुलेशन में 95% तक डिसलिपिडीमिया है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी फ़िज़िकल एक्टिविटी हेल्पफुल है. तो हमें बिहेवियरल थेरेपी करने की ज़रूरत है अपने मुआशरे की कि जहाँ आप फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं. एक तरफ आपके पास लिफ्ट का कॉन्सेप्ट है कि आपने ग्राउंड फ्लोर से 3rd फ्लोर पे जाना है. अगर आपको कोई मेडिकल इशू नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है नीज का, आप चल सकते हैं, गो एंड क्लाइंब द स्टेयर्स. अगर मार्केट आपके घर के पास है और इट्स जस्ट 15 मिनट्स वॉक, तो जस्ट गो एंड डू अ वॉक एंड बाय योर ग्रॉसरीज. हम सबको बहुत सारे लोगों को एक्सपोजर होता है यूके डिफरेंट जगहों पे जाने का, वहाँ यही कॉन्सेप्ट है. वहाँ तो पार्किंग का 1-1 मिनट काउंट करता है, तो लोग अवॉइड करते हैं गाड़ी पे जाना, जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं या वॉक करते हैं. लेकिन क्या हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है? नहीं. इस चीज़ को हमें उजागर करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट लेवल पे
भी इस चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि जहाँ हम रोड बनाते हैं वहाँ पैदल चलने वालों की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। फुटपाथ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि चला जब रोड पे खाली ट्रैफिक होगी और पैदल चलने वालों को रोड पार करने में ही घंटा घंटा लग जाएगा तो वो अवॉइड करेंगे। इस वजह से भी शायद लोग रिलक्टेंट होते हैं। तो ओवरऑल बिहेवियरल थेरेपी का कॉन्सेप्ट जो है हमें उजागर करने की ज़रूरत है कि और लोगों को कॉन्सेप्ट दिया जाए कि जितनी भी इससे पहले पैनलिस्ट ने डिस्कशन की है, स्ट्रोक, डायबिटीज़, ओबेसिटी, इन सब का जो टूल है, ये सारी बीमारियां कैसे एक्ट करती हैं, वो इसी कोलेस्ट्रॉल के ज़रिए हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। यही एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ब्रेन की आर्टरीज़ में क्लॉट बनाता है, यही एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कॉर्नरी आर्टरीज़, हार्ट की आर्टरीज़ में जाके ब्लॉकेज करता है, और यही एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ करता है। बेसिकली इस चीज़ को लोगों को कॉन्सेप्ट देने की ज़रूरत है। Thank you all. If you have any questions. Thank you. Thank you, Dr. साहब. Thank you. ये जो प्राइमरी प्रिवेंशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, इसके लिए अभी हम लोग एक स्टडी शुरू कर रहे हैं, रादर पब्लिक अवेयरनेस के बारे में चीज़ें शुरू कर रहे हैं। उसका नाम हमने दिया है फैंटास्टिक 4। ये कार्टून नहीं है, इसमें 4 जो है नंबर्स हैं जो हर आम आदमी को पता होने चाहिए। अगर आपको नॉर्मल नंबर पता होंगे तो फिर एबनॉर्मल के बारे में आप परेशान होंगे। तो फैंटास्टिक 4 में हमारी थीम ये है कि हर आदमी को अपना कोलेस्ट्रॉल के बारे में नंबर पता होना चाहिए नॉर्मल, उसको शुगर के बारे में अपना नंबर पता होना चाहिए, उसको ब्लड प्रेशर के बारे में अपना नंबर पता होना चाहिए, और लास्ट में जो है ना उसको अपनी वेस्ट सरकमफ्रेंस का नंबर पता होना चाहिए। ये 4 नंबर कॉमन नंबर्स हैं। अगर वो विद इन रेंज रखता है तो इसका मतलब है उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, उसने एज्यूम की हुई है। इसके लिए अभी हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए कराची यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम कर रहे हैं, और देन फिर हमारा इरादा है कि आर्ट्स काउंसिल में एक प्रोग्राम करेंगे। इस वक्त जो है ना मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है ना प्राइमरी प्रिवेंशन की है। मेरे ख़्याल में कैथेटर बेस्ड और बाकी मोडालिटीज़ जो है ना उनका ख़र्चा भी बहुत है, और उसकी वजह से जो चीज़ें हैं कि आपकी बीमारी जब मैनिफेस्ट हो जाती है तो उसके बाद जो है आपका आउटपुट कम हो जाता है। तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी है मेरे ख्याल में। और ये फैंटास्टिक 4 के लिए फिर हम FIC से भी हमने बात की है, वहाँ पे भी हम शुरू करेंगे इसको। तो होपफुली जनरल पब्लिक को जब आप इन्वॉल्व करेंगे तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। एंड में मैं हर स्पीकर का शुक्रिया भी अदा करते हुए एक सवाल कर लेता हूँ। जैसा कि वास्कुलर डिजीज़ के बारे में सलाम साहब ने डिस्कस किया था, सलाम साहब कौन सी ऐसी चीज़ है जो वास्कुलर डिजीज़ के लिए आप किसी को सजेस्ट करें कि वो उसके लिए हेल्दी रहे चीज़ें? वैसे तो लाइफस्टाइल की सारे लोग ही सुबह से बात कर रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि जैसे आपने भी बात की प्रिवेंशन की, प्रिवेंशन तक पहुंचते पहुंचते मेरे ख्याल बहुत लोगों के लिए वो वाली बस तो निकल चुकी है। अब ये है कि व्हेन दे आर इन देयर लेट 40s और 50s, तो उसमें अब प्राइमरी प्रिवेंशन करते करते भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उससे पहले ही कोई ऐसी नौबत आ जाएगी कि जिसमें उन्हें ज़रूरत पड़ जाएगी कि वो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ सोचें और ट्रीटमेंट की तरफ सोचें। तो उसमें मे बी फॉर अ लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ पीपल एट दिस पॉइंट इन टाइम प्राइमरी प्रिवेंशन शायद इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो, स्क्रीनिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव है उनके लिए। लेकिन फिर भी ये आपको मैं जो अब एक टेक होम मैसेज अगर बताऊं तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अभी भी उसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं, स्मोकिंग करते हैं अगर आप, तो आई थिंक दिस वुड बी वन ऑफ द गुड थिंग दैट यू वुड डू इन योर एंटायर लाइफ।
अगर स्मोकिंग छोड़ देते हैं और एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बाकी सारी डाइट और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शायद कॉस्ट इफ़ेक्टिव आपके लिए ना हो, ख़रीदनी पड़ेंगी, चीज़ें मालूमात हासिल करनी पड़ेंगी। कुर्सी से उठ जाएं और सिगरेट पीने बंद कर दें। तो ये 2 चीज़ें मैं कहूँगा कि ये 2 चीज़ें अगर वो कर लें तो उनके लिए इस स्टेज पे बहुत काफ़ी है। थैंक यू। डॉक्टर फरियाल, ये जो डायबिटीज़ का ट्रेंड है ना, यंगर एज ग्रुप होना शुरू हो गया है, आप इसको रिवर्स कैसे करेंगे? क्या सजेशन दें? डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए डायबिटीज़ जो यंगर पॉपुलेशन में ज़्यादा होनी शुरू हो गई है, ट्रेंड रिवर्स। यंगर पॉपुलेशन में अब ज़्यादा हो गई है ना, जी, तो उसको रिवर्स करने के लिए या उसको रोकने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे अभी का मेरा टॉपिक तो जो डाइट था, वो मेडिकल थेरेपी से अलग था, लेकिन आजकल की जो यंग इंडिविजुअल्स हैं उनमें सारा झगड़ा जो है ना वो है ही खाने पीने का। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग एंड नॉट ईटिंग द ऑर्गेनिक फूड, नॉन ऑर्गेनिक फूड, जिसमें कि फास्ट फूड तो इतना अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो ड्रिंक्स वो आजकल लेते हैं, सोडा ड्रिंक्स हैं, स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा उनमें ट्रेंड हो गया है, एंड ऑल द टाइम यू नो गोइंग आउट एंड पार्टिंग, इस चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा रोकना है, क्योंकि दुनिया भर में मैंने कहा ना झगड़ा ही खाने पीने का है। लोग दूसरे से आगे बढ़ते हैं इसीलिए कि उनको ज़्यादा मिल जाए, वो ज़्यादा अच्छा खा लें, उनको ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल जाए, वो खा लें। लेकिन हम जो चीज़ समझते हैं कि जो चीज़ अच्छी है वही हमारे लिए सबसे बुरी है। जैसे मेरी बेटी भी मुझसे कहती है कि मम्मा जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं आप उनको हमेशा नो कह देती हैं कि मैं ये नहीं खाऊं, मैं बाहर की चीज़ ना खाऊं, घर का बना हुआ खाना खाऊं। तो दिस इज़ नॉट राइट कि मुझे तो जो बाहर की चीज़ों के चट खा रहे हैं और ये चीज़ें हैं इसको करना है। तो ये कंट्रोल हम पब्लिक अवेयरनेस से कर सकते हैं, बच्चों में हम जैसे हम मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बच्चे छोटी छोटी चीज़ें जो टिकटॉक पे और इस पे जो देखते हैं उस पे हम ये मैसेज देते हैं कि जनाब आप ये चीज़ खाएंगे तो आपकी तबीयत ख़राब होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, टेक केयर। आप ये चीज़ खाएंगे आपकी शुगर लेवल बढ़ी होगी, आपकी वेस्ट बढ़ जाएगी, आप मोटे हो जाएंगे, लोग आपको हंसेंगे आपके ऊपर। तो इस किस्म की चीज़ों को हमें थ्रू मीडिया, थ्रू पेरेंट्स, थ्रू डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस, उसमें हम सिर्फ डॉक्टर्स को इनवाइट ना करें, हम कॉमन लोगों को, यंगर इंडिविजुअल्स को हम इनवाइट करें और उनको हम बताएं कि क्या चीज़ उनके लिए बेहतर है, क्या हेल्दी है। दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। और फिर वही जो एक घिसा पिटा फैक्टर जो हम बताते हैं हर एक को कि जी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बजाय इसके कि आपको ट्रीटमेंट दी जाए, आप पहले से ही इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करें जो आपके लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो और आपके हेल्थ अच्छा रखें। थैंक यू। डॉक्टर इरफान, अगर किसी को स्ट्रोक का शक हो तो पहली चीज़ उसको क्या करनी चाहिए? एक आम पब्लिक के लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखें, बहुत अच्छा सवाल है पब्लिक के लिए कि अगर सडन लॉस ऑफ पावर ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, स्ट्रोक को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से मिमिकर्स भी होते हैं स्ट्रोक के, बहुत से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, फिट्स पड़ रहे होते हैं, लोग समझते हैं स्ट्रोक हो रहा है। अगर बॉडी में एक तरफ पावर सडन लॉस हो जाए तो इसका मतलब है स्ट्रोक है। तो पहला काम ये करना चाहिए कि किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जाएं जहां पर सीटी स्कैन अवेलेबल है। आप प्राइमरी बेसिक सीटी स्कैन कराएं ताकि मालूम हो कि ये हेमरेजिक है या इस्कीमिक है। जैसे आपको पता है कि 85% जो स्ट्रोक हैं वो इस्कीमिक हैं और 15% हेमरेजिक होते हैं। मगर पाकिस्तान में जो हमारा डाटा है जो हम पब्लिश करने वाले हैं उसमें तकरीबन 35% स्ट्रोक जो है ना इस्कीमिक हेमरेजिक है बजाय 15 के। तो मेरे ख्याल में करीबी हॉस्पिटल जाके पहले बेसिक सीटी स्कैन कराएं ताकि डिसाइड हो जाए, बजाय ये किसी जीपी के पास जाएं जहां पर आपका विंडो टाइम, जो ट्रीटमेंट विंडो टाइम है 6 आवर्स का, वो ख़राब ना हो। और इस हवाले से मैं एक चीज़ और कि आपका जो इनिशिएटिव है फैंटास्टिक 4 का बहुत पसंद आया मुझे, और उसके लिए आप कराची यूनिवर्सिटी में तो करेंगे मगर ये स्कूल जितने भी हैं, कॉलेजेस हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा। कंटिन्यूस एजुकेशन है, एक बार ये फैंटास्टिक 4 का वर्ड लोगों को समझ में आ जाए, आवाम को, जैसे यहाँ पर ही बहुत से स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो बहुत ही फ़ायदा होगा लोगों को आगे। थैंक यू। इसमें मैं आपको बताऊं, अगर आप पिछले साल, एक्चुअली हमारे पास फंडिंग का इशू होता है, पिछले साल हमने बच्चों की एजुकेशन के लिए तकरीबन 20 ड्रामे किए थे आर्ट्स काउंसिल में,
और तमाम स्कूलों के बच्चे आते थे। एक सेशन में 500 ऑडियंस होता था। ये 20 ड्रामे में एंग्रो और फामियो ने स्पॉन्सर किए थे। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हंसी मजाक में हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी डाइट 1 घंटे का होता था और उसको बड़ा एंजॉय किया। मीडिया ने भी बहुत अप्रिशिएट किया और ये बच्चों के लिए हमने शुरू किया था और बहुत कामयाब रहा था। अब दोबारा हमारा इरादा है कि हम उसको फिर दोबारा से करें। इस दफ़ा शायद IBA का जो ऑडिटोरियम है उसमें हम करेंगे। डॉक्टर काशा, आप ये बताएं वो क्या मोटिवेशन होगी कि बंदा वॉक शुरू करे? अच्छा सर, सबसे पहले तो स्केल पे बढ़ता हुआ अपना वज़न हमारे लिए मोटिवेशन होना चाहिए, उसको कंट्रोल करना। अदर देन दैट, अगर हम इनिशियल लेवल से अवेयरनेस जनरेट कर दें तो हमारे लिए यहाँ तक की नौबत ही नहीं आएगी कि हमें मोटिवेट होने की ज़रूरत है या नहीं। अगर हम पब्लिक सेक्टर में बात करें तो हमारी अर्बन डिज़ाइनिंग इस तरीके से होनी चाहिए कम्युनिटी सर्विसेज में कि हम वॉकिंग पैटर्न्स के ऊपर जाएं। डॉक्टर वकास ने इसका बहुत अच्छा जिक्र किया कि वी शुड बी फॉन्ड इनफ ऑफ टेकिंग लॉन्ग वॉक्स इन द पार्किंग लॉट्स, which we are not. People, if would like to take a walk to the markets, they can't. They get afraid of being snatched or other vulnerable things. So, community level के ऊपर हमें अपनी urban policies को इस तरीके से डिज़ाइन करना होगा कि हम लोगों को उस मोटिवेशन लेवल तक लेकर जाएं। फिर पर्सनल नोट पे हम इस चीज़ को देखेंगे कि आपने अपनी मैक्सिमम वॉकलेसनेस की तरफ किस तरह जाना है, वॉकिंग पैटर्न की तरफ कैसे जाना है। ठीक, थैंक यू डॉक्टर वकास। खालिद, 4 नंबर जो हमारे हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए कि कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL एंड देन ट्राइग्लिसराइड्स, आप किसी एक नंबर पे अगर स्ट्रेस करें और उस पर फोकस करें तो किस नंबर को चूज़ करना चाहेंगे? सर, जैसा मैंने अपनी टॉक में भी जिक्र किया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन विल बी द LDL कोलेस्ट्रॉल सर। और इस चीज़ को भी जितना जल्दी हम पिक कर लें कि LDL कोलेस्ट्रॉल, मेरे ख़्याल में सर LDL कोलेस्ट्रॉल को पिक करने के लिए हमें स्क्रीनिंग ऑफ द पॉपुलेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, उसकी डिफरेंट मोडेलिटीज़ हैं। अब मैं एक ऐसे इदारे से हूँ जहाँ पे हमारा एनुअल मेडिकल होता है सर, वहाँ पे हम 35 साल का बंदा भी पिक हो जाता है कि इसका LDL लेवल हाई है। इसी तरह कॉलेज लेवल पे भी 20s की एज में भी अगर कोई कॉलेज में, जब किसी को फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में जा रहा है तो हम कंपलसरी कर दें कि एक स्क्रीनिंग हो। मतलब डिफरेंट मोडेलिटीज़ बनाई जा सकती हैं। कितनी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है ये कहना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमें पॉपुलेशन को स्क्रीन करना होगा और सबसे ज़्यादा एम्फेसिस LDL कोलेस्ट्रॉल को सर करना पड़ेगा। और अगर इसके साथ रेप्लिकेट कर सकें तो HDL कोलेस्ट्रॉल, उसको तो हम एक्सरसाइज से टारगेट करेंगे सर। थैंक यू। एक ऑडियंस से सवाल है जी। My question is concerned about the diabetes and about as we see about look at kidney transplantation is going on in our society, as well as liver transplantation is going on. What is the technologies come in Pakistan? Pancreas transplantation, absolutely remedial of the type 1 and type 2 first, and second, the insulin bank are broadly available in Pakistan. Why? कब तक मुमकिन है कि इंसुलिन बैंक जैसे स्वीडन में है कुछ यहाँ आ जाए? और जैसे कि जो डॉक्टर आसिम होता है, हम लोग बच्चों को देख रहे हैं जंक फूड खा रहे हैं, उनको ज़रा सा कहें कि भाई बाहर से ले आओ जाके, ये सामने आपने कहा, वो मोटरसाइकिल निकालेंगे, उनका तो बस ही चलता, बाथरूम में भी मोटरसाइकिल में, दही ले आओ उस पर मोटरसाइकिल, पैदल चलने का बिल्कुल आप सही कहा। मैडम, आप मेरा जो सवाल समझ गई है कि कब तक मुमकिन है ट्रांसप्लांटेशन, जैसे कि किडनी हो रहा है, लीवर हो रहा है, या अंगूर के गुच्छों की तरह होता है? जी जी, या मैं मुझे समझ गई। मैं बहुत शुक्रिया जी,
ये जो आपने कहा कि पैनक्रियाटिक ट्रांसप्लांट जो है ये अभी इन द पाइपलाइन है, दुनिया भर में इसके ऊपर वर्कअप हो रहा है. दिस विल बी गुड फॉर द टाइप 1 इंडिविजुअल्स. टाइप 2 के लिए भी हो सकेगा, लेकिन चूंकि टाइप 2 में पैनक्रियाज ऑलरेडी हैं लेकिन वो इनसेंसिटिव हो गए हैं, उनके जो सेल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से इंसुलिन नहीं निकाल रहे, तो उसमें मुझे नहीं पता कि वो कहाँ तक पॉसिबल होगा. लेकिन इन जो टाइप 1 इंडिविजुअल्स हैं वो ज़रूर बेनिफिट इससे पा सकेंगे. इसमें स्टेम सेल के ऊपर से वो काम हो रहा है कि कौन से स्टेम सेल जो हैं वो इस तरह से ट्रांसप्लांट किए जाएं कि ये पैनक्रियाटिक फंक्शन जो है ये नॉर्मल हो जाए. ये इसके ऊपर अभी काम हो रहा है. पाकिस्तान में तो अभी खैर दूर दूर कोई सवाल नहीं है, पूरी दुनिया में भी अभी इसके ऊपर पूरी तरह से रिसर्च तो हो रही है, काम भी हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से ये पाए तकमील तक नहीं पहुंचा है कि कब तक ये ट्रांसप्लांट का सिलसिला हो सकेगा. इसके साथ ही इस सेशन को कंक्लूड करते हैं. मैं थैंक यू करूंगा अब्दुल सलाम खान साहब, फरियाल तारिक, इरफान अमजद लुत्फ़ी, ओकाशा अंजुम और वकास खालिद साहब का कि उन्होंने शिरकत की और अपनी राय से इज़हार किया. थैंक यू वेरी मच. I would now like to request Dr. Abid Abbas Sheikh, Organizing Secretary, Healthcare Expo, to please present the shields to our esteemed guests. Professor Tahir Saghir, ED, मैं उनको मोटिवेट करूँगा. NICVD. Dr. Abdul Salam, Shifa International, Islamabad. Dr. Faryal Tariq, DUHS, Ojha. Professor Irfan Ahmad Lutfi, NICVD. Dr. Okasha Anjum, Indus University. Dr. Waqas Khalid, HOD Cardiology, PNS Shifa. Thank you all for taking our time today and joining us for this session.